Hello students, how are you all? I hope you all are good. Now student, today in this session we will discuss your next chapter, chapter number 10, tens and hundreds. So students, in your Google Meet we already discussed about tens and hundreds. What is the meaning of tens, what's its hundreds, and how tens and hundreds are related to each other. So basically in your place value you have ones, tens, hundred. Okay. So in the left hand side of a decimal point, that is your ones, tens, hundred and thousand and so on. Okay, so say ones, tens, 100,000, 10,000, lakhs and so on. But in right hand side it's your tens, hundreds, thousands. Okay, tens, hundreds and thousands. So जो आपका डेसिमल पॉइंट होता है, इसके राइट साइड पे जब आप चीज़ें लिखना शुरू करते हैं, नंबर्स को प्लेस करते हैं, सो इट्स योर टेंथ्स प्लेस. Clear? Next one is your hundreds place, and it's your thousands place and 10,000s. So let's start your chapter from my page number 134. What was the length of the smallest pencil you have used? So just take your one smallest pencil and just find out the length of that pencil. Okay, आप अपनी एक पेंसिल लीजिए और उसके लेंथ को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए. क्लियर? So here we have one pencil. How long is this pencil? Guess. So first you have to guess the length of this pencil. So basically it's a picture. So picture में किसी की भी length को guess करना it's quite difficult. Okay. So here you have the scale also. With the help of that scale, we will try to find out the length of this pencil. Measure it using a scale. How good is your guess? We can see that Anju use a lens to make it look bigger. So अंजू क्या करती हैं? अंजू पेंसिल को प्लेस करती हैं स्केल के पास और फिर उसको चेक करती हैं मैग्नीफाइंग ग्लास से. ओके, लेंस के थ्रू उसको चेक करने की कोशिश करती हैं क्लियरली कि एक्चुअल में पेंसिल की लेंथ कितनी है. सो एज यू कैन सी हियर इट्स योर स्केल. ओके, इट्स योर 0, 1 centimeter, 2 centimeter, 3 centimeter, 4 centimeter, 5 is not visible because of the lens, 6, 7, 8, 9, 10. So these are the centimeters, and between these centimeters you have 10 partition. 6 से 7 के बीच में 10 partition है. So that is your millimeter. क्लियर? आपके 2 सेंटीमीटर्स के बीच में 10 पार्टीशंस होते हैं जिसे हम कहते हैं मिलीमीटर. इट मीन्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर. 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So within 1 centimeter you have total 10 millimeter. Clear? 1 meter is equals to 100 centimeter and 1 centimeter is equals to 10 millimeter. Now with the help of that scale and lens, she is trying to find out the length of that pencil. So as you can see here, it's 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 centimeter and 6 millimeter. Okay, so what is the length of that pencil? 3 centimeter and 6 millimeter. It is more than 3 centimeter. Hence here 1 centimeter has 10 equal parts. So each part is 1/10 of a centimeter. Okay, आपका सेंटीमीटर के बीच में कितने टोटल पार्ट्स हैं? टोटल 10 पार्ट्स हैं. सो अगर आप 10 में से 1 पार्ट लेते हैं, सो दैट इज़ 1/10. इफ़ यू टेक 2 पार्ट्स आउट ऑफ 10, दैट इज़ 2/10. एंड जैसे कि आपके यहाँ पे पेंसिल है 3 एंड 6, इसमें 6 पार्ट्स इंक्लूड हो रहे हैं 10 में से, सो इट्स 6/10. सो दैट इज़ दी टेंथ्स प्लेस. ओके, ये आपका क्या है? टेंथ्स. नॉट 10, इट्स टेंथ्स. क्लियर? सो व्हेन यू टेक 1 पार्ट फ्रॉम अ सेंटीमीटर, इट इज़ 1/10 ऑफ सेंटीमीटर एंड दैट्स कॉल्ड 1 मिलीमीटर. क्लियर? अगर आप 1 सेंटीमीटर में से 1 पार्ट लेते हैं, सो दैट इज़ योर सेंटीमीटर. इसमें से अगर आप 1 पार्ट ले रहे थे तो दैट इज़ 1/10. इफ़ यू टेक 2 पार्ट्स इज़ 2/10. क्लियर? सो जब आपके डिनोमिनेटर में 10 है एंड दैट इज़ टेंथ्स प्लेस. एंड जब आप इसमें से 1 पार्ट लेंगे दैट इज़ 1 मिलीमीटर, 2 पार्ट्स लेंगे 2 मिलीमीटर. क्लियर? सो 1/10 इज इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर, 2/10 इज इक्वल्स टू 2 मिलीमीटर, 6/10 इज इक्वल्स टू 0.6 and you can say 6 millimeter also. Clear?
Oh, so this pencil is 3 centimeter and 6 millimeter long. Okay, 3 centimeter complete है and आपके 6 point show हो रहे हैं. So that is 3 centimeter and 6 millimeter. See, I am 3 millimeter long. Now here you have one insect. Okay, see, I am 3 millimeter long. इस insect की जो length है वो क्या है आपके 3 millimeter. And how you can say that it's 3 millimeter, because it's included 3/10 parts. 1, 2, 3. Okay, so 3/10 means 3 millimeter. But I am longer 7/10 of a centimeter or dash millimeter. So ये क्या कह रहे हैं, दूसरे इंसेक्ट क्या कह रहे हैं, but I am longer, मैं लंबा हूँ 7/10 of a centimeter, 1 सेंटीमीटर का 7/10. So 7/10 को आप क्या कह सकते हैं, 7 millimeter और 0.7 centimeter. Clear? So here your answer is 7 millimeter. 5, 6 and 7. So that is your 7 millimeter. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7/10 or 7 millimeter. Next is, we also call 1/10 of a centimeter is 0.1 centimeter. 1/10, when you divide 1 by 10 you will get 0.1. Clear? So you can say that 0.1 centimeter also and 1 millimeter also. Clear? So when you convert 1 millimeter into centimeter, you will divide it by 10, so that is 1/10. Okay, and your answer is 0.1. So it's 0.1 centimeter. Clear? So 1 millimeter को आप 1 millimeter भी लिख सकते हैं and 0.1 centimeter भी लिख सकते हैं. So 1 millimeter is the same as 0.1 centimeter. Now come to the next page, and that is page number 135. What is the length of this pencil? Okay, so here you have another pencil and you have to find out the length of that pencil. So it's 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So it's 1.6. Is it? No. Why no? Because the length of this pencil is started from this portion. Clear? यहाँ पे length हम कहाँ से मेजर करना शुरू कर रहे हैं, यहाँ से. यहाँ पे आपकी पेंसिल नहीं है. क्लियर? सो आप 1 से मेज़र करना स्टार्ट कर रहे हैं, सो हम 1 को लेंगे 0, क्योंकि मेजरमेंट जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है वी विल टेक इट एज 0. क्लियर? सपोज दैट योर पेंसिल इज प्लेस्ड हियर. अगर आपकी पेंसिल यहाँ प्लेस होती देन हम यहाँ से काउंट करना शुरू करते हैं. क्लियर? सो पेंसिल का मेजरमेंट स्टार्ट हो रहा है 1 से, सो हम 1 को अज्यूम करेंगे 0. सो इट्स योर 0.1, 2, 3, 4, 5, 6. So it's a 0.6 centimeter, or you can say that 6 millimeter. Okay, you can say 6/10 centimeter also. Okay, 1 सेंटीमीटर का 6 पार्ट है, so that is 6/10 centimeter also. Clear? So our right answer is 6/10 centimeter or 0.6 centimeter, or in millimeter you can say that it's 6 millimeter. Clear? So your answer is 6 millimeter. What is its length in centimeter? इसके सेंटीमीटर में लेंथ क्या होगी? सो सेंटीमीटर में अब आपको ऑलरेडी बता चुके हैं. ये सेंटीमीटर में 6/10. ओके, 10 का 6 पार्ट है, सो इट्स 6/10. सो इन सेंटीमीटर यू कैन राइट इट 0.6 centimeter. Okay, so as an answer in your book you have to write 0.6 सेंटीमीटर. 0.6 सेंटीमीटर कैसे हुआ है? आपके पास 6 मिलीमीटर है. अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे सो यू विल डिवाइड इट बाय 10, बिकॉज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर. सो योर आंसर इज 0.6. Now come to the next topic, frogs. Have you seen frogs? क्या आपने कभी frogs देखे हैं? कहाँ देखे हैं? How many different types of frogs have you seen? आपने कितने types के frogs देखे हैं? Are all the frogs of the same length? क्या सारे frogs की length same होती है? Here are two interesting examples. So here we have two interesting examples about frogs. So one is gold frogs and another one is bullfrog. Gold frogs. This kind of frogs is among the smallest in the world. Its length is only 0.9 centimeter. So आपके पूरे वर्ल्ड में जो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रॉग होते हैं उनके स्पीसीज में आपका एक फ्रॉग है गोल्ड फ्रॉग, जिसकी लेंथ होती है सिर्फ 0.9 सेंटीमीटर. 0.9 सेंटीमीटर मीन्स ये फ्रॉग्स इतने छोटे होते हैं कि इनकी जो लेंथ होती है वो 1 सेंटीमीटर से भी कम होती है. इतने बड़े होते हैं सिर्फ इतने से 0.9.
ओके 1 सेंटीमीटर का भी 1 मिलीमीटर कम, दैट इज 0.9 सेंटीमीटर. ओके गैस हाउ मैनी सच फ्रॉग्स कैन सिट ऑन योर लिटिल फिंगर. आपके लिटिल फिंगर में ऐसे कितने फ्रॉग्स आपके लिटिल फिंगर में ऐसे कितने फ्रॉग्स बैठ सकते हैं, आप इसको गैस कीजिए. सो अपने लिटिल फिंगर को देखिए और सोचिए इसमें 0.9 सेंटीमीटर के 0.9 छोड़ दीजिए, 1 सेंटीमीटर के कितने फ्रॉग्स रह सकते हैं, गैस कीजिए. नेक्स्ट इज बुल फ्रॉग, बट दिस इज अमंग द बिगेस्ट फ्रॉग. इट इज एज लॉन्ग एज 30.5 सेंटीमीटर. आपकी एक दूसरी स्पीसीज है बुल फ्रॉग, इनकी जो लेंथ होती है 30.5 सेंटीमीटर. इट मीन्स आपका जो स्केल होता है 15 सेंटीमीटर का उसके डबल से भी ज़्यादा. 30.5 सेंटीमीटर मीन्स आपके 15 सेंटीमीटर का जो स्केल होता है उसके डबल से भी ज़्यादा ये फ्रॉग्स इतने बड़े होते हैं. ओके सो जो आपके एक हैंड की लेंथ है ये उससे बड़े फ्रॉग्स होते हैं. क्लियर. What does 0.9 सेंटीमीटर मीन्स. 0.9 सेंटीमीटर का क्या मतलब है. सो 0.9 सेंटीमीटर मीन्स 9 मिलीमीटर. ओके 10 का 9 पार्ट, सो दैट इज 9 मिलीमीटर. इट इज सेम एज 9 millimeter. Just write here 9 millimeter. We can also say this is a 9/10 of a centimeter, right? तो क्या आप इसे 9/10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं? Yes, because आपके 1 सेंटीमीटर में होते हैं टोटल 10 मिलीमीटर और आपके इस फ्रॉक की लेंथ है 9 मिलीमीटर. सो यू कैन राइट इट लाइक दैट 9/10 सेंटीमीटर. ओके सो इज इट राइट? इट इज राइट. सो 30.5 सेंटीमीटर इज सेम एज. सो आपका जो 30.5 सेंटीमीटर है इसको आप कैसे लिख सकते हैं. सो हियर 30 इज सेंटीमीटर एंड 0.5 मीन्स इट्स मिलीमीटर. ओके इट्स 30.5. क्लियर. सो 30 आपका कंप्लीट है, सो इट्स 30 सेंटीमीटर. एंड आपकी 10th प्लेस में 5 है, ये आपका डेसिमल पॉइंट है. ओके इसके राइट हैंड साइड में आपकी 10th प्लेस होगी, सो दैट इज योर 5 मिलीमीटर. सो इन 30.5 सेंटीमीटर इट्स 30 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर. Next is about how many of the big frogs will fit on the 1 meter scale. आपके 1 मीटर स्केल में कितने बिग फ्रॉग्स आ सकते हैं. सो 1 मीटर में आपके होते हैं टोटल 100 सेंटीमीटर. क्लियर. एंड आपके एक फ्रॉग की जो लेंथ है वो कितनी है 30. क्लियर. एक फ्रॉग की लेंथ कितनी है 30.5 सेंटीमीटर. क्लियर. सो 30 के आपके 100 में कितने फ्रॉग्स आ सकते हैं. सो 30 प्लस 30 प्लस 30, सो इट्स टोटल 90. ओके 30 के अगर आप 3 फ्रॉग्स लेंगे तो आएगा 90. आपके 1 मीटर के स्केल में टोटल 3 बिग फ्रॉग्स फिट हो सकते हैं. 5 3s are 15, 5 कैरी 1. ओके 3 0s are 0, सो 1 कैरी था 1 एंड 3 3s are 9, सो इट्स 91.5. When you multiply 30.5 by 3 you will get 91.5. क्लियर. सो ये आपके 100 सेंटीमीटर से कम है. आप इसमें एक और ऐड करेंगे तो वो 100 से अबव चला जाएगा. क्लियर. सो योर आंसर इज 3. क्लियर. फिट 3 बिग फ्रॉग्स ऑन द 1 मीटर स्केल. हम 1 मीटर स्केल में टोटल 3 बिग फ्रॉग्स फिट कर सकते हैं. 4 नहीं हो पाएंगे बिकॉज 34 है, दैट इज़ 120 एंड हमारे 1 मीटर में सिर्फ 100 सेंटीमीटर से होते हैं. ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. नाउ नेक्स्ट इज इफ दे सिट इन अ स्ट्रेट लाइन अबाउट हाउ मैनी ऑफ द स्मॉल फ्रॉग्स विल कवर 1 मीटर. अगर एक स्ट्रेट लाइन में खड़े हो जाएं तो कितने स्मॉल फ्रॉग्स आपके 1 मीटर के स्केल को कवर करेंगे. सो अगेन 1 मीटर में आपके होते हैं 100 सेंटीमीटर. क्लियर. एंड आपका एक जो स्मॉल फ्रॉग है वो है आपका 0.9 सेंटीमीटर का. क्लियर. इट्स 0.9 सेंटीमीटर और यू कैन से दैट 9 मिलीमीटर ऑल्सो. क्लियर. सो आपके 1 उसमें है आपके 100 सेंटीमीटर 1 मीटर में. क्लियर. एंड 100 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर. क्लियर. सो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 into 10 दैट इज 1000 मिलीमीटर. क्लियर. सो आपके 1 मीटर स्केल का मीनिंग है 1000 मिलीमीटर. 1 मीटर में आपके होंगे 100 सेंटीमीटर एंड 1000 मिलीमीटर. क्लियर. सो 1000 मिलीमीटर में आपके 9 मिलीमीटर के कितने फ्रॉग्स फिट हो सकते हैं अगर वो एक स्ट्रेट लाइन में हो विदाउट एनी गैप.
सो 1000 को 9 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं कि 1000 में कितने 9 फिट्स हो सकते हैं। सो 9 1s are 9, अगेन इट्स 10, 9 1s are 9, अगेन इट्स 10, 9 1s are 9, नाउ 1 is remainder, क्लियर। सो टोटल 111 स्मॉल फ्रॉग्स फिट हो सकते हैं 1 मीटर में, क्लियर। और हमने इसको कैसे किया, पहले मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, फिर सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट किया एंड देन मिलीमीटर को डिवाइड कर दिया 9 से, बिकॉज आपके स्मॉल फ्रॉग की जो लेंथ है वो है 0.9 millimeter। ओके, now here we have one practice time, so with the help of the previous knowledge we will do it. So your first question is length of the nail is 2 centimeter and dash millimeter. So you have to find out the length of this nail. स्कील की आपको length find out करनी है. So it's 0, 1, 2, okay, and it's not complete 3 से थोड़ा सा कम है, 3 से 1 मिलीमीटर कम है, so it's 2.9. okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, clear. So what is the length of the nail? 2.9. okay, 2.9. So we can say that 2 centimeter and 9 millimeter also. So length of the nail is 2 centimeter and 9 millimeter, and you can write it like that also, 2.9 centimeter. That is your answer. okay, so students, one by one write all the answers in your book. okay, आपको बुक में सारे आंसर्स फिल करने हैं. नेक्स्ट इज द लेंथ ऑफ दिस लेडी फिंगर भिंडी इज, अब आपको इस भिंडी की लेंथ फाइंड आउट करनी है. सो फर्स्ट जूम इट एंड देन ट्राई टू ऑब्जर्व इट. सो स्टार्टेड फ्रॉम 1, ये 1 से स्टार्ट हो रही है, क्लियर. सो हम 1 को एज्यूम करेंगे 0, क्लियर. सो इट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 and 8.3. 1 2 3, it's 8.3, and you can do it like that also. When you observe its end, it's 9.3. okay, जब आप इसके एंड को देखेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है आपको 9.3, एंड यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम इट, क्योंकि आगे से 1 तो कवर हुआ ही नहीं है. सो 9.3 में से 1 आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ओके, सो दैट इज 8.3, क्लियर है. तो 1 को 9 के नीचे लिखेंगे. अगर आप मिलीमीटर सब्ट्रैक्ट कर रहे होते देन आप यहाँ पे 1 को लिखते, क्लियर. सो इट्स 1.0. ओके, 1 सेंटीमीटर आपका 9 सेंटीमीटर के नीचे आएगा. सो योर फाइनल आंसर इज 8.3. सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द भिंडी? दैट इज 8.3 सेंटीमीटर, एंड यू कैन राइट इट लाइक दैट ऑल्सो, 8 सेंटीमीटर एंड 3 मिलीमीटर. 8.3 में आपके 8 सेंटीमीटर एंड 3 मिलीमीटर है. सो लेंथ ऑफ द भिंडी इज 8 सेंटीमीटर एंड 3 मिलीमीटर. वी कैन राइट इट एज 8.3 सेंटीमीटर ऑल्सो. ओके, 8 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर को हम लिख सकते हैं 8.3 मिलीमीटर ऑल्सो, सेंटीमीटर ऑल्सो. ओके, so that is your answer, 8 centimeter and 3 millimeter and 8.3 centimeter. Now next is using the scale on this page, find the difference in length between candle 1 and candle 3. So here you have one scale, okay, and you have to find out the length of the candle also. So it's your homework, clear. आपका ये homework है. आप स्केल की हेल्प से कैंडल 1 एंड कैंडल 3 की हाइट को फाइंड आउट करेंगे और उनका डिफरेंस निकालेंगे, क्लियर. सो कैसे करना है मैं आपको बता देती हूँ. कैंडल 1 लेंथ इन सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर. सो आप सबसे पहले क्या करेंगे, कैंडल 1 पे स्केल रखेंगे, क्लियर, और कैंडल 1 की लेंथ को फाइंड आउट करेंगे, क्लियर. विद द हेल्प ऑफ द स्केल, जस्ट प्लेस दैट स्केल इन योर बुक एंड मेजर द लेंथ ऑफ दैट कैंडल 1. नेक्स्ट, लेंथ इन सेंटीमीटर. सो फर्स्ट आप जब लेंथ लिखेंगे तो आप लिखेंगे सेंटीमीटर और मिलीमीटर दोनों में. जैसे आपकी ये जो भिंडी है लेडी फिंगर, इसकी लेंथ थी 8.3. सो आप लिखेंगे 8 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर. सो सपोज इस कैंडल की जो लेंथ है वो है 5.4. सो आप लिखेंगे 5 सेंटीमीटर एंड 4 मिलीमीटर, क्लियर. एंड यहाँ पर आप लिखेंगे उसको सेंटीमीटर में, इट मीन्स इसमें आ जाएगा आपका डेसिमल. सो सपोज आपकी अगर लेंथ थी 5 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर, सो सेंटीमीटर में वो हो जाएगी 5.4 सेंटीमीटर, वो आप लिखेंगे यहाँ पे.
नेक्स्ट इज फ्लेम 1, आपकी जो कैंडल 1 है उसकी जो फ्लेम है, देन आप उसकी हाइट फाइंड आउट करेंगे कि वो कितनी ऊंची है। क्लियर। अब आप इसको भी क्या करेंगे, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में कन्वर्ट करके लिखेंगे। जस्ट लाइक अगर आपकी जो फ्लेम है ये 2 सेंटीमीटर एंड 1 मिलीमीटर की है तो आप लिखेंगे 2 सेंटीमीटर एंड 1 मिलीमीटर। एंड अगर आपको सिर्फ सेंटीमीटर में लिखना हो सो दैट इज़ 2.1 मिलीमीटर। सो इट्स योर होमवर्क, आप इसको अपने स्केल की हेल्प से ऑब्जर्व करेंगे, उसको मेज़र करेंगे एंड उनकी वैल्यूज़ को यहाँ पर लिखेंगे। एंड अगर आपको उसमें कोई भी डिफ़िकल्टी आती है देन प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, देन आई विल प्रोवाइड यू वन वीडियो बेस्ड ऑन इट। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ गैस एंड कलर। फर्स्ट आपको गैस करना है एंड आफ्टर दैट आपको उसको कलर करना है। क्लियर। फर्स्ट कलर दी रॉड्स एज शोन विदाउट मेजरिंग देन चेक। आपको यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग रॉड्स को कलर करना है एंड उसके बाद आपको स्केल की हेल्प से मेज़र करके चेक करना है कि आपने सही किया है या नहीं। ओके, सो फर्स्ट इज रॉड्स ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर लेस देन 1 सेंटीमीटर रेड। जो भी आपको 1 सेंटीमीटर से कम की रॉड्स लग रही हैं आप उनको क्या करेंगे, रेड कलर से कलर करेंगे। सो हेयर आई थिंक दिस वन इज़ लेस देन 1, okay, and this one is less than 1, that is also less than 1. So according to me only these 2 rods are less than 1. Okay, now next is rods of length between 1 centimeter and 2 centimeter blue। आपको 1 से 2 सेंटीमीटर के बीच में जो भी लगती है उनको ब्लू से कीजिए। so this one is 1 or 1 point something, this one is also I think 1 or 1 point something। okay, एंड आपके 1 से 2 के बीच में ये भी आपके 1 से 2 के बीच में हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू मी, आप इसको अपने अकॉर्डिंग करेंगे। क्लियर। सो आई थिंक ये आपके जो 3 रॉड्स हैं यही आपके 1 से 2 के बीच में है। नेक्स्ट इज रॉड्स ऑफ लेंथ बिटवीन 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। जो 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर के बीच में है आप उनको ग्रीन से कलर करेंगे। सो 2 से 3 के बीच में आपकी ये रॉड हो सकती हैं, फर्स्ट वन। ओके, सेकंड 2 से 3 के बीच में, थर्ड ओके 2 to 3 सेंटीमीटर के आपके बीच में हो सकती हैं। दिस वन ऑल्सो आई थिंक एंड दैट इज ऑल्सो। सो हेयर वी हैव 1 2 3 4 5 rods which are between 2 to 3 centimeter and that is according to me, I think this one also। okay, सो इट्स टोटली अप टू यू, आप अपने गैस वर्क के अकॉर्डिंग इसको कलर करेंगे। एंड फॉर कलरिंग यूज़ ओनली क्रेयॉन्स एंड पेंसिल कलर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रॉड्स ऑफ लेंथ बिटवीन 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, यू हैव टू कलर इट बाय ऑरेंज कलर। सो 1 2 ये आपके सारे के सारे 3 से 4 सेंटीमीटर के बीच में होंगे। क्लियर। सो दैट इज़ अकॉर्डिंग टू मी, आप अपने अकॉर्डिंग रॉड्स को कलर करेंगे क्रेयॉन्स और पेंसिल कलर की हेल्प से एंड आफ्टर दैट उसको चेक करेंगे स्केल की हेल्प से कि आपका कौन सा सही है और कौन सा गैस रॉन्ग है। तो जो भी गैस आपका करेक्ट होगा आप उसको एज इट इज़ रहने देंगे और जो भी गैस आपका रॉन्ग होगा आप उसके आगे पेंसिल से क्रॉस करेंगे। ओके, सो दैट इज़ योर होमवर्क and this one is also it's your homework, you have to do it by yourself and you have to do it in your book only, आप इसको सिर्फ बुक में करेंगे। now next is guess, draw and measure। okay, आपको guess करना है, draw करना है and then उसको measure करना है। guess the length to draw these things, ask your friend to draw the same, after you make the drawing use a scale to measure the length whose drawing shows a better guess। सो आपको क्या करना है बेसिकली स्टूडेंट, दैट इज़ योर ग्रुप एक्टिविटी, या आपकी ग्रुप एक्टिविटी है। इसमें हम करेंगे क्या, आई विल एक्सप्लेन, बट इसको करने के लिए आपको एटलीस्ट 1 or 2 फ्रेंड्स की ज़रूरत होगी। सो अगर आपके आसपास आपके फ्रेंड्स हैं तो आप उनकी हेल्प से कीजिए, फैमिली मेम्बर्स की हेल्प से कीजिए, और अगर कोई नहीं है तो आप इसको छोड़ देंगे। ओके, सो फर्स्ट इज गेट्स इट्स लेंथ एंड ड्रॉ। सो आपको इन चीज़ों को गैस करना है, इनको ड्रॉ करना है। ओके, और उनकी लेंथ को मेज़र करना है। अब आप अपने फ्रेंड्स के संग इन ड्राइंग को करेंगे। ओके, सो आपके पास 2 ड्राइंग्स होंगी, आप अपनी ड्राइंग को मेज़र करेंगे और फिर अपने फ्रेंड्स की ड्राइंग को मेज़र करेंगे। क्लियर। एन आंट ऑफ लेंथ लेस देन 1 सेंटीमीटर। सो आपको क्या करना है, एक आंट ड्रॉ करनी है जो लेस देन 1 सेंटीमीटर है। क्लियर। सपोज दैट आपने अपनी आंट ड्रॉ करी, आपके फ्रेंड ने भी अपनी आंट ड्रॉ करी। क्लियर। अब आपको चेक करना है कि किसका मेजरमेंट करेक्ट है, तो जिसका मेजरमेंट करेक्ट होगा उनके आगे आप टिक करेंगे। ओके, अगर किसी की भी आंट 1 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा चली जाती है सो आप उसके आगे क्रॉस करेंगे। ओके,
नेक्स्ट इज पेंसिल ऑफ लेंथ अबाउट 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर की पेंसिल आपको ड्रॉ करनी है। ओके, सपोज आपने पेंसिल ड्रॉ करी, क्लियर, आपके फ्रेंड ने भी पेंसिल ड्रॉ करी, देन आफ्टर दैट ड्रॉइंग, then after the drawing it you have to measure the length of your pencils। जिसकी पेंसिल की लेंथ 7 सेंटीमीटर है उसके आगे आप टिक करेंगे और जिनकी नहीं है उनके आगे आप क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट इज अ ग्लास 11 सेंटीमीटर हाइट विद वाटर अप टू 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपको एक ग्लास ड्रॉ करना है 11 सेंटीमीटर का, ओके, जिसमें वाटर का लेवल होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। ओके, वाटर लेवल बनाओगे आप 5 सेंटीमीटर का, एंड गैस वर्क से बनाने के बाद आप उसको मेज़र करेंगे स्केल से। अ बैंगल ऑफ पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर। ओके, आपको एक बैंगल ड्रॉ करनी है पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर की। इट मीन्स अगर आप यहाँ से उस बैंगल को मेज़र करना स्टार्ट करें सेंटीमीटर स्केल से तो वो पूरी 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ओके, सो इसको आप ऐसे चेक कर सकते हैं। सपोज दैट इज़ योर ड्राइंग, आपने बैंगल की ड्राइंग बना दी। अब आप एक थ्रेड लीजिए 20 सेंटीमीटर लंबी थ्रेड लीजिए, उसको किसी भी पॉइंट पे फिक्स कीजिए, फिर बैंगल के साथ उसको रोटेट करते हुए एंड कर दीजिए। सो अगर आपकी 20 सेंटीमीटर की थ्रेड कंप्लीटली ओवरलैप कर रही है आपकी बैंगल को, सो इट मीन्स आपका गैस वर्क करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट इज अ कर्ली हेयर ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर। आपको कर्ली हेयर्स बनाने हैं जिनकी लेंथ 16 सेंटीमीटर हो। क्लियर, सो दैट इज़ योर होमवर्क। ओके, आप इसको एज एक्टिविटी कर सकते हैं, इसको एक गेम की तरह कर सकते हैं और करके देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। आपको ये सारी चीज़ें गैस करके ड्रॉ करनी है और फिर मेज़र करना है। अपने पार्टनर के संग चेक कीजिए कि कौन करेक्ट है। जिसका करेक्ट आता है उसको एक पॉइंट दीजिए और लास्ट में जिससे सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होंगे वो आपके होंगे विनर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज आवर आईज गेट कन्फ्यूज्ड। हमारी आंखें कैसे कन्फ्यूज हो जाती हैं। विच लाइन इज लॉन्गर, ए और बी? मेजर्स ईच लाइन एंड राइट हाउ लॉन्ग इट इज इन सेंटीमीटर। हाउ गुड इज योर गैस? सो हेयर यू हैव 2 लाइन्स ए एंड बी। ओके, आपके पास ए एंड बी 2 लाइन्स हैं। क्लियर, दिस वन एंड दिस वन। आप गैस कीजिए कौन सी बड़ी है, फिर उसको मेज़र करके चेक कीजिए एंड देन फाइंड आउट कीजिए कि आपका गैस वर्क कितना करेक्ट है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप इसको नॉर्मली ऑब्जर्व करें तो आपको लगेगा कि जो आपकी लेंथ बी है, लाइन बी है, वो लाइन ए से बड़ी है। बट व्हेन यू ऑब्जर्व सो यू विल फाइंड दैट बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल होंगी। क्लियर, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ लाइन ए? आप इस पॉइंट से इस पॉइंट को मेज़र करेंगे। क्लियर, फॉर लेंथ बी यू विल ऑब्जर्व दिस पॉइंट। क्लियर, सो बोथ दी लाइन्स आर सेम। आपको ये छोटी और ये बड़ी इसलिए लग रही है क्योंकि इसमें एरो इनसाइड की तरफ है। क्लियर, तो इसको ये श्रिंक कर रहे हैं और इसमें एरो आउटसाइड है, सो ये इसको एक्सपेंड करके दिखा रहे हैं। क्लियर, बट दोनों लाइनें आपकी सेम है। विच लाइन इज लॉन्गर, सी और डी? मेजर ईच लाइन, हाउ गुड इज योर गैस? अब आप फाइंड आउट कीजिए कौन सी लाइन बड़ी है, सी लाइन बड़ी है या डी लाइन बड़ी है। सो जब आप इसको नॉर्मली देखते हैं वन लुक में, अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो आपको सी बड़ी लगेगी लेकिन डी आपको छोटी लगेगी। क्लियर, बट द लेंथ ऑफ सी लाइन इज़ 3.1 एंड डी इज़ 3.2। इट मीन्स डी सी से 0.1 बड़ा है। आप इसको स्केल की हेल्प से चेक कर सकते हैं। सी है आपका 3.1 एंड डी इज़ 3.2। आपका डी ग्रेटर है सी से 0.1। इट मीन्स 1 मिलीमीटर ग्रेटर है डी। क्लियर, एंड बट जब आप इसको देख रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है, सी बड़ी है एंड डी छोटी है, बिकॉज एक लाइन आपकी हॉरिजॉन्टली अलाइंड है एंड दूसरी आपकी वर्टिकली अलाइंड है। ओके, सो हियर द करेक्ट आंसर इज डी इज ग्रेटर देन सी। क्लियर, डी इज 3.2 एंड सी इज 3.1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज हुज टेल इज द लॉन्गेस्ट? किसकी टेल लंबी है आपको ये फाइंड आउट करना है। क्लियर, सो गैस हुज टेल इज लॉन्ग। नाउ मेजर द टेल, हाउ गुड इज योर गैस? आपको so here you have one rat, cat, dog, lizard, monkey and pig, and now you have to guess whose tail is long and whose tail is longest, and after that just take your scale and measure whose tail is longest। आप मेजर कीजिए किसकी टेल ज़्यादा लंबी है। नेक्स्ट इज द लॉन्गेस्ट रुपीज़ नोट। आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि कौन सा नोट सबसे बड़ा है। What is the length of a 100 rupees note? Guess, now measure it using scale। आपके पास जो 100 रुपीज़ का नोट होता है, ओके, 100 रुपीज़ का नोट कितना बड़ा होता है आपको उसको गैस करना है एंड उसके बाद उसको चेक करना है। क्लियर, सो फॉर दिस एक्टिविटी यू वांट 100, 10,
20 and 5 rupees note. First just gets its length and width in centimeters and then write it here. So suppose 100 rupees note, its length is 10 centimeter and its width is 5 centimeter. Okay, it's just a guess. For 10 rupees note, suppose its length is 8 centimeter and its width is 4 centimeter. एंड ऐसे ही आप बाकी चीज़ों के लिए भी गैस करके यहाँ पर लिखेंगे. क्लियर? एंड आफ्टर दैट आप इसको मेज़र करेंगे और इस बॉक्स में फिल करेंगे. So students, here first you have to guess the length and the breadth of 100, 10, 20 and 5 rupees note, one postcard and math magic books, and after that you have to measure it and then you have to write your final length and width here. Clear? Now come to the next topic, and that is your at the market, page number 139. So page number 138. So at the market there are some items, okay, and here their cost is already mentioned here. See here, cost of one egg is 2 rupees 50 paisa, cost of one handbag is 120 rupees 50 paisa, matchbox 50 paisa, okay, slippers 30 rupees 99 paisa, and pen and other things. Okay, now here we have some questions and you have to find out the answers with the help of these images. Now first question is, how many पैसे does a matchbox cost? एक matchbox की cost क्या है? So as you can see here, it's already written that its cost is 50 पैसा. 0.50 rupees means 50 पैसा. So just write here 50 पैसा. Clear? Next is, how many matchbox can be got for 2 rupees 50 पैसा? आप 2 rupees 50 पैसे में कितने matchbox खरीद सकते हो? So here is your solution. 5 matchbox can be bought for 2 rupees 50 पैसा. आप इससे 5 matchbox खरीद सकते हैं. How? 2 rupees 50 पैसा, that is equals to 250 पैसा, and 1 matchbox is rupees 50 पैसा. Each matchbox जो है आपका वो 50 पैसे का है. Clear? So 250 divided by 50, that is equals to 5. 0 0 cancel out, 5 5 is 25. It means आप 2 rupees 50 पैसे में 5 matchbox खरीद सकते हो. Clear? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी रुपीज़ डज दिस सोप कॉस्ट? एक सोप की कॉस्ट कितने की है? ओके, सो हेयर इज योर सोप, द कॉस्ट ऑफ इट इज 8 rupees 75 पैसा. सो जस्ट राइट हियर 8 rupees 75 पैसा. क्लियर? 8.75 rupees. Next question is, Arun wanted to buy a soap. He has a 5 rupees coin. अरुण सोप को खरीदना चाहते हैं, उनके पास एक 5 रुपीज़ का कॉइन है. 2 1 rupees कॉइन, 4 हाफ रुपीज़ कॉइन. 2 1 रुपीज़ का कॉइन है एंड 4 हाफ रुपीज़ के कॉइन्स हैं. राइट इन रुपीज़ व्हाट मनी ही विल गेट बैक. तो अगर वो इतने रुपए शॉपकीपर को देता है तो उसको वापस कितने रुपए मिलेंगे? क्लियर? सो उनके पास एक 5 रुपीज़ का कॉइन है, 2 1 रुपीज़ के कॉइन है, इट मीन्स उनके पास 2 रुपीज़ हैं. 4 हाफ रुपीज़ के कॉइन्स हैं, इट मीन्स उनके पास 200 पैसे, यानी कि अगेन उनके पास 2 रुपीज़ है, टोटल उनके पास 9 रुपीज़ हैं. क्लियर? एंड उनके सोप का जो प्राइस है वो है 8 rupees 75 पैसा. क्लियर? सो 10 minus 5 5, 9 minus 7 2 एंड आपका 9 8 हो जाएगा. सो हियर इज 0. सो राइट नाउ ही विल गेट बैक 25 पैसा. उन्हें 25 पैसे वापस मिलेंगे. Here is your answer. टोटल मनी विद अरुण 1 multiply by 5 बिकॉज 5 रुपीज़ का एक कॉइन है. 2 multiply by 1 बिकॉज 1 रुपीज़ के 2 कॉइन्स हैं. 4 multiply by 0.5 क्योंकि 50 पैसे के 4 कॉइन्स हैं. सो टोटल उनके पास है 9 रुपीज़. कॉस्ट ऑफ अ सोप इज 8.75. एक सोप की कॉस्ट है 8 rupees 75 पैसा. अरुण विल गेट बैक 9 minus 8.75, दैट इज इक्वल्स टू 0.25, यानी कि उनको 25 पैसे 25 पैसे वापस मिलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन एग कॉस्ट 2.5 rupees. एक एग की कॉस्ट है 2.5 rupees, 2 rupees 50 पैसा. हाउ मच विल 1.5 डजन कॉस्ट? तो आपके 1.5 डजन की कॉस्ट कितनी होगी? सो स्टूडेंट्स, 1 डजन में आपके होते हैं टोटल 12 आइटम्स. हाफ डजन में होंगे 12 का हाफ यानी कि 6 आइटम्स. सो टोटल 1.5 डजन में होंगे आपके 18 आइटम्स. क्लियर? 1.5 में आपके होंगे 18 आइटम्स. इट मीन्स आपको फाइंड आउट करना है
18 एग की कॉस्ट। ओके, सो अगर 1 एग 2 रुपीज़ 50 पैसे के हैं तो 18 एग्स कितने के होंगे? सो जस्ट मल्टीप्लाई 250 बाय 18. Dozen equals to 12 pieces. So 1.5 dozen is equals to 12 plus 6, that is equals to 18 pieces. Cost of 1 egg is 2 rupees 50 paisa. So cost of 18 eggs is 18 multiplied by 2 rupees 50 paisa. So when you multiply 18 by 2 rupees 50 paisa, you will get 45. It means the cost of 1.5 dozen eggs are 5 rupees. Clear? So when you multiply 18 by 250, so you will get 45 rupees. It means आपके 18 eggs की cost है 45 rupees. Next is how many pens can Kana buy? How much money is left? काना कितने पेन्स खरीदते हैं और काना के पास कितने पैसे बच जाते हैं? So काना take rupees 60 and buy 1.5 dozen eggs. काना के पास 60 रुपीज़ है, उसमें से वो 1.5 डजन एग्स ले लेते हैं. इट मीन्स वो 45 रुपीज़ के एग्स ले लेते हैं. सो 60 में से 45 गया, आपका बचा 15. इट मीन्स उनके पास बचते हैं 15 रुपीज़. यू कैन बाय पेन्स विद दी मनी लेफ्ट. अब उनकी मम्मा कहती हैं कि आपके पास जो भी पैसे बचते हैं आप उसके पेन्स खरीद लेना. ठीक है. सो 60 में से 45 के वो एग्स खरीद चुके हैं. इट मीन्स अब उनके पास है 15 रुपीज़. एंड आपका एक पेन की जो कॉस्ट है दैट इज़ 6 रुपीज़ 50 पैसा. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट दैट कि वो 15 रुपीज़ में से कितने पेन खरीद सकते हैं. हियर इज द आंसर. मनी लेफ्ट आफ्टर परचेज ऑफ 1.5 डजन एग्स इज इक्वल्स टू टोटल मनी माइनस मनी स्पेंड. टोटल उनके पास है 60, 45 रुपीज़ वो स्पेंड कर चुके हैं. इट मीन्स उनके पास है 15 रुपीज़. कॉस्ट ऑफ वन पेन इज 6 रुपीज़ 50 पैसा. सिंस 1 पेन इज 6 रुपीज़ 50 पैसा एंड 2 पेन्स की जो कॉस्ट होगी दैट इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय 6.50. तो 2 पेन की जो कॉस्ट है वो होगी आपकी 13 रुपीज़. इट मीन्स उनके पास 15 रुपीज़ हैं, 13 रुपीज़ के वो पेन ले लेंगे और उनके पास 2 रुपीज़ बचेंगे और वो लेंगे 2 पेन. क्लियर. तो काना कैन बाय 2 पेन्स. वो 15 रुपीज़ में सिर्फ 2 ही पेन खरीद सकते हैं क्योंकि अगर वो 3 पेन्स खरीदेंगे तो उनको 15 से ज़्यादा मनी पे करनी होगी. क्लियर. सो आंसर इज़ 2 पेन्स. एंड उसके बाद एंड आफ्टर दैट उनके पास कितने पैसे बचेंगे? काना मनी लेफ्ट विथ काना इज़ 15 माइनस 13 दैट इज़ ₹2. इट मीन्स उनके पास 2 रुपीज़ बच जाएंगे. नाउ नेक्स्ट इज कैन आई बाय 2 पेन्स विद ₹13. तो अब एक गर्ल है, वो सोच रही हैं कि क्या वो 13 रुपीज़ में 2 पेन ले सकती हैं. सो द प्राइस ऑफ 2 पेन इज़ 13. आपके 2 पेन का प्राइस 13 था. क्लियर. सो यस शी कैन बाय 2 पेन्स विथ ₹13. वो 13 रुपीज़ में 2 पेन्स खरीद सकती है. So price of 1 pen is 6.50. So price of 2 pen is 13 rupees. So she can buy 2 pens with ₹13. So here is your answer. Okay. So that is the answer of your practice time. So here is your answer of your question which are in your page number 139. So one by one just pause your video and do it in your notebook. Clear. आप अपनी notebook में करेंगे and before that first you have to write out your page number. Okay. Page number 139 आप मेंशन करेंगे एंड उसके बाद आप इसे अपनी नोटबुक में करेंगे. Now come to the next page and that is your page number 140. Practice time match these. Okay, so you have to do it in your book only. आप अपने इसे आप अपनी बुक में करेंगे. इसके प्रीवियस जो क्वेश्चन है इन्हें आपको अपनी नोटबुक में करना है. क्लियर. So first one is match each yellow box with 1 green and 1 pink box. So आपको इनके वैल्यू के अकॉर्डिंग इनको आपस में मैच करना है. One example is already given for you. हाफ रुपीज़. ओके. सो हाफ रुपीज़ 1 रुपीज़ में 100 पैसा होते हैं. सो 100 हाफ दैट इज़ 50 पैसा. क्लियर. सो हाफ ऑफ अ रुपीज़ इज़ 50 पैसा. ओके. एंड 50 पैसे को अगर आप रुपीज़ में ही रिप्रेजेंट करेंगे सो 50 पैसा आपका होगा 0.50. ओके. 100 डिवाइडेड बाई 2, 100 का डिवाइड करेंगे आप, आपका आएगा 50. क्लियर. सो इट्स 50 पैसा. बट व्हेन यू डिवाइड 1 रुपीज़ इंटू 2 पार्ट सो इट्स 0.50. क्लियर. जब आप 1 रुपीज़ को ही डायरेक्ट 2 से डिवाइड करेंगे विदाउट पैसे में बिना पैसे में कन्वर्ट किए सो आपका आएगा 0.50. नेक्स्ट इज ₹110. ओके. सो 100 पैसे का 10 पार्ट दैट इज इक्वल्स टू 10. So your answer is ₹110 part is 10 paisa. Okay. So the answer is
1/10 पार्ट ऑफ अ रुपीज़ इज़ 10 पैसा, क्लियर। एंड जब आप 1 को 10 से डिवाइड करेंगे सो आपका आएगा 0.1. सो व्हेन यू कन्वर्ट इट इनटू रुपीज़ सो योर आंसर इज 0.10, क्लियर। नेक्स्ट इज 5/100 of a rupees. So 5/100 of 1 rupees. 1 rupees is equals to 100 पैसा. So 100 cancel out. So your answer is 5 पैसा. एक रुपीज़ का 5/100 part that is 5 पैसा. And when you convert it into rupees, so you will get 0.05. Here is the answer. क्लियर। 5 पैसे को जब आप रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे सो यू विल डिवाइडेड बाय 100, सो आपका आएगा 0.05. नेक्स्ट इज 3/4 ऑफ अ रुपीज़. सो 3/4 ऑफ अ रुपीज़, सो 1 रुपीज़ इज 100 पैसा. सो 100 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 25 एंड 25 3 is 75. सो 3/4 ऑफ 1 रुपीज़ इज 75 पैसा. एंड जब आप 75 को रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे यू विल डिवाइडेड बाय 100, सो यू विल गेट 0.75. So your answer is 0.75. Next is 99/100 of a rupees. So 99/100 multiply by 100. 1 rupees में 100 पैसा होते हैं, so multiply it by 100. 100 cancel out. Final answer is 99. So 99/100 of 1 rupees is equals to 99 paisa. When you convert it into rupees, so you will divide it by 100, so you will get 0.99. Next is 1/4 of a rupees. 1/4 of a rupees. 1 rupees is 100 paisa. Just multiply it. So just divide it and you will get 25. So 1/4 of a rupees is 25 paisa. And when you convert it into rupees, you will get 0.25. So students, with the help of this video, one by one, just complete your book and notebook work, okay. And for proper understanding, watch this video at least 2 times. That is your chapter tens and hundreds, okay. And other pages we will discuss in the next video. And please watch this video at least 2 times. And if still you have any confusion, then comment me in the comment section and you can directly contact to me. Thanks for watching it. I hope this video is helpful to all of you. For any confusion, feel free, okay, feel free to ask. You can comment also and you can directly contact to me, clear. So student, that's it for today. I hope this video is helpful to all of you. With the help of this video, please just complete your book and notebook work, okay. Have a nice day. Take care. Bye bye.